Hello everyone. Welcome to first part of kinetic theory of gases. Today we shall study introduction and concept of mean free path. In the beginning of this chapter, few questions are asked in order to brush up your knowledge in 11th standard. First question is, what are the different states of matter? So as we all know, solid, liquid, gases and plasma. These all are the states of matter. Second question is, how do you distinguish between solid, liquid and gaseous state? Gases, liquids and solids, these all are made up of atoms, molecules, ions. But the behavior of these all particles differ in three phases. We know gases are well separated with no regular arrangement, but liquids are close together with no regular arrangement, while solids are tightly packed and they are usually in regular patterns. So in this way we can distinguish them. Then next question is, what are the gas laws? गैस लॉज ये ऐसे लॉज है कि जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ऑफ द गैस ये तीनों को रिलेट करते हैं. बॉयज लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गै-ल्यूसैक्स लॉ है. ये सब गैस लॉज करके जाने जाते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि जिसके ऊपर थर्मोडायनेमिक सिस्टम has the lowest energy, and in terms of degree centigrade it is minus 273.15 degree Celsius, and on Fahrenheit scale it is minus 459.67 degree Fahrenheit. Next question is, what is Avogadro's number and what is mole? Avogadro's number ये एक proportion है that relates molar mass on an atomic scale to the physical mass on the human scale. Avogadro's number हम define कर सकते हैं कि number of elementary particles जैसे molecules है, atoms है, per mole of a substance. So number of molecules of a particle per mole of a substance can be referred as Avogadro's number. Avogadro's number की value 6.022 into 10 to the power 23 पर मोल होती है, और ये कैपिटल N, कैपिटल A सफिक्स Na ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये सभी चीजें हमें आगे भी लगने वाली है, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस पूछे हैं चैप्टर के बिगिनिंग में. सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ डू यू गेट आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम द गैस लॉज? ये इमीडिएटली हम स्टडी करने वाले हैं, तो यहाँ पे नहीं डिस्कस करते. हाउ इज द आइडियल गैस डिफरेंट फ्रॉम रियल गैसेस? अब यहाँ पे ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आइडियल गैस मतलब क्या होता है? तो आइडियल गैस ऐसा गैस है that follows the gas laws at all conditions of temperature and pressure. जो तीन लॉज बताए थे गैस लॉज, वो ये फॉलो करता है आइडियल गैस एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. रियल गैस जो है वो काइनेटिक थ्योरी के आगे जाके हम स्टडी करने वाले हैं कि क्या बेसिक अजम्पशंस है काइनेटिक थ्योरी के, कि जिसके ऊपर वो अजम्पशंस के ऊपर फिर ये पूरी थ्योरी डेवलप की है. तो रियल गैस ये सभी अजम्पशंस फॉलो नहीं करता है. ये बेसिक डिफरेंस है आइडियल गैस और रियल गैस में. नेक्स्ट इज, व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स? इलास्टिक कोलिजन ये ऐसा कोलिजन होता है कि जिसमें no net loss of kinetic energy is there. Next question is, what is Dalton's law of partial pressures? Partial pressures क्या होता है? तो partial pressure is a pressure exerted by individual gas in a mixture, and it is called as partial pressure. And Dalton's law of partial pressure है कि total pressure of a mixture of a gas is equal to the, यानी सपोज एखादा गैस दो तीन गैस का मिक्सचर है, तो टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट gases. तो
P अगर प्रेशर है तो P टोटल, ये टोटल गैस का प्रेशर अगर हम डिनोट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर P total is equal to P gas 1 plus P gas 2 plus P gas 3. So in this way all these things have been learned in 11th standard. So we have just brush up all these concepts because we are going to use these all concepts in developing the kinetic theory of gases. जैसे हमने अभी देखा है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं मैटर के, और जो गैस लॉज है जैसे बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गेल-ल्यूसैक्स लॉ है, तो ये तीनों भी लॉज से हम आइडियल गैस इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ है V is inversely proportional to pressure, यानी वॉल्यूम जो है गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर को, प्रोवाइडेड टेम्परेचर ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट। सिमिलरली चार्ल्स लॉ सेज volume is directly proportional to the temperature at constant pressure, and Gay-Lussac's law says pressure is directly proportional to the temperature at constant volume. ये तीनों भी लॉज फिक्स मास अगर हम m लेते हैं एनक्लोज गैस का तो उसके लिए अप्लाई होते हैं, और ये तीनों भी लॉज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेल-ल्यूसैक्स लॉ ये तीनों भी एक साथ कंबाइन करते हैं हम, तो हमें मिलता है कि PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये होगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 upon T2 like this. So expressing the fixed mass of gas in above three laws in terms of number of moles, we can write it as PV is equal to nRT. यहाँ पे ये N जो है वो mass of the gas है divided by its molar mass, which is equal to N divided by Na, where molar mass is a mass of 1 mole of a gas. ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो फास्ट लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है कैपिटल R, इसे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर डिग्री केल्विन फॉर ऑल द गैसेस। और N जो है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस होता है, और Na ये एवोगाड्रोस नंबर होता है जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ अ गैस। ये सभी हम अभी पढ़ चुके हैं। अल्टरनेटली सेकेंड वे से हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू NKB T, जहाँ पे ये KB जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। R एंड KB ये दोनों भी एक दूसरे के साथ यानी रिलेशन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का क्या है, तो R इज इक्वल टू NaKB। ये जो बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है या गेल-ल्यूसैक्स लॉ है, ये सभी रियल गैसेस के लिए भी वैलिड होती है जब प्रेशर किसी गैस का ये बहुत हाई नहीं है एंड द टेम्परेचर इज नॉट क्लोज टू द लिक्विफिकेशन टेम्परेचर ऑफ द गैस। जो गैस ये इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT ये फॉलो करता है at all pressures and temperature is called as ideal gas. हमने इसके पहले भी देखा है आइडियल गैस क्या है, जो सभी गैस लॉज फॉलो करता है, और ये PV इज इक्वल टू nRT ये रिलेशन हमने तीनों गैस लॉज कंबाइन करके ही निकाला है। तो ये इक्वेशन जो लॉ सभी प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर फॉलो करेगा वो गैस को हम कहते हैं आइडियल गैस। किसी भी गैस के लिए उसकी स्टेट मतलब क्या होता है, तो नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है और उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। तो जो इक्वेशन ये चारों भी क्वांटिटीज को रिलेट करता है उसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ द स्टेट।
इसके पहले भी हमने देखा है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस ये क्या है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो क्लोजली पैक होते हैं और उनकी रेगुलर अरेंजमेंट भी होती है। लिक्विड्स में वो क्लोज होते हैं एक दूसरे से, लेकिन उनकी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है। लेकिन गैसेस में जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऑल द पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, दे आर कॉन्स्टेंटली इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। तो इसकी वजह से ये जो प्रॉपर्टी है गैसेस की कि वो कॉन्स्टेंटली स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं। और मोशन से रिलेटेड जो मोशन है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक थियरी। जो मोशन से रिलेटेड है वो थियरी है काइनेटिक थियरी। इसलिए हम काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस यानी गैसेस की ही काइनेटिक थियरी पढ़ते हैं। और ये जो क्रेडिट है ये क्रेडिट जाता है मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, ये दोनों साइंटिस्ट को। अब जैसे यहाँ पे हम किसी भी हाइट पे अगर स्टोन फेंकते हैं तो वो कुछ हाइट तक जाके फिर से जमीन के ऊपर आ जाता है। तो ये जो मोशन है ये मोशन हम स्टोन का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से डिस्क्राइब करते हैं। वैसे ही अगर एक गैस है जो क्लोज्ड है किसी भी कंटेनर में, तो ये गैस का ये मैक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन हो जाएगा और गैस के पार्टिकल्स ये कांस्टेंट मोशन में है। स्टोन के क्या है, सॉलिड है इसलिए फिक्स है, इसलिए ये हर एक इंडिविजुअल गैस का बिहेवियर एक्सप्लेन करना बहुत क्या है, डिफिकल्ट है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ मोशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, क्योंकि हर एक पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मोशन में है और वो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, दिस प्रॉपर्टीज आर नॉट फिक्स्ड, दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। क्योंकि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड भी होते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते भी है, दे आर कॉन्स्टेंटली इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। इसलिए हम हर एक गैस के पार्टिकल की इंडिविजुअल स्टडी नहीं कर सकते हैं। Number of particles in a gas itself is so large, 1023 particles per meter cube. इसलिए any attempt to relate the macroscopic parameters like pressure, volume, temperature, energy with the motion of individual particles will be futile. इसलिए हम क्या करते हैं, हमने कुछ assumptions यहाँ पे किए हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने की वजह से हम उसकी इंडिविजुअल गैस की या इंडिविजुअल पार्टिकल की प्रॉपर्टी स्टडी नहीं करेंगे, तो हम एज अ एवरेज मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स जो है यानी गैस की हम एवरेज स्टडी करेंगे। तो ये है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का अप्रोच। यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम क्या करते हैं, किसी के भी पार्टिकल की एवरेज यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब इसके पहले भी आइडियल गैस और रियल गैस ये दोनों का हम शॉर्ट में कंसेप्ट लेके आए हैं। तो अब यहाँ पे फिर से देखते हैं कि गैस ओबेइंग आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल प्रेशर्स एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड एज आइडियल गैस। अब आइडियल गैस है, इसमें बहुत ही ये बड़ा असम्पशन है। हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी ये बहुत बड़ा असम्पशन करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज एब्सेंट इन द आइडियल गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट असम्पशन है, आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, these are the absent in case of a ideal gas. लेकिन रियल गैस में which is composed of atoms and molecules which do not interact with each other, hence no real gas is truly ideal as defined here. If atoms and molecules of real gas are so far apart that there is practically
no intermolecular interaction, the real gas is said to be in the ideal state. और ये कब पॉसिबल होगा? लो डेंसिटी ऑफ अ रियल गैस, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, यानी वो जो बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है या गेल ल्यूसैक्स लॉ है, ये सभी गैसेस रियल गैस के लिए, ये सभी लॉज रियल गैसेस के लिए कब वैलिड होंगे? एट अ हाई टेम्परेचर, तभी ही ये रियल गैस आइडियल गैस करके बिहेव करेगा। अब यहाँ पे कैन यू टेल में आपको 3 अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं। व्हाई इज द डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर ऑब्जर्व एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर? हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये बहुत वीक हो जाते हैं और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एवरेज सेपरेशन दो मॉलिक्यूल के बीच का बहुत कम होता है as compared to that at low pressure and high temperature. Second question है, what is the effect of the size of molecules of a real gas as against the ideal gas comprising point particles on the properties of the gas? फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन है, विस्कोसिटी है, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन पे डिपेंड करता है, और इसकी वजह से वो साइज पे भी मॉलिक्यूल के डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल की डायमीटर जितनी ज्यादा होगी, यानी ग्रेटर द मॉलिक्यूलर डायमीटर, द लेस इज द कोएफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ रियल गैस। तीसरा क्वेश्चन है, does an ideal gas exist in reality? So answer is no, क्योंकि आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये इग्नोर करते हैं एक्सेप्ट ड्यूरिंग द कोलिजन। अब हम कंसेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ समझते हैं। ये फिगर में एक कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स ये यहाँ पे कंसिडर किए हैं, और ये जो डॉट्स है, ये डॉट्स का मीनिंग है कि ये गैस मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में है। ये मोशन गैस मॉलिक्यूल्स का यानी रैंडम मोशन, इससे और भी एक नाम है, वो है ब्राउनियन मोशन। मॉलिक्यूल्स गैस ये यूनिफॉर्मली डिस्पर्स थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये फिगर में यहाँ पे शो किया है, जो रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये टिपिकल पाथ ऑफ मॉलिक्यूल है, यानी सपोज ये मॉलिक्यूल यहाँ से है तो ये ऐसे गया, फिर यहाँ पे ये कोलाइड हुआ, फिर उसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज हुई, फिर यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसके साथ वो कोलाइड हुआ, फिर से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर ऐसे ट्रेवल किए, यहाँ पे फिर कोलाइड किया, फिर यहाँ पे गया मॉलिक्यूल, फिर यहाँ से फिर से कोलाइड होके उसके डायरेक्शन बदली। सो इन दिस वे दिस इज द पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग इट्स रैंडम मोशन। अब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच का ये जो पाथ है उसे हम फ्री पाथ कहते हैं, यानी दो कोलिजन्स के बीच का जो पाथ है वो फ्री पाथ है। तो ऐसे फ्री पाथ बहुत अलग अलग होते हैं, तो इसलिए जैसे हमने पहले भी देखा है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम इंडिविजुअल पार्टिकल का नहीं, तो हम एज अ एवरेज कंसिडर करते हैं। तो ये जो फ्री पाथ है, फ्री पाथ मतलब दो कोलिजन्स के बीच का पाथ, तो ये फ्री पाथ का जो एवरेज होता है उसे हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। और यहाँ पे ये जो कोलिजन है, ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन हम अज्यूम करते हैं। इलास्टिक कोलिजन इसके पहले भी हमने देखा है कि जिसमें देयर इज नो लॉस ऑफ द एनर्जी, इसलिए स्पीड और डायरेक्शन मॉलिक्यूल की ये कॉन्स्टेंटली और एब्रुप्टली चेंज होती है। ये मॉलिक्यूल अपने मोशन में वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलाइड होते हैं, और मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर ड्यूरिंग एवरी कोलिजन, इसलिए in between two successive collisions the molecule
move along a straight path with constant velocity. इसलिए हम यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ लेते हैं कि जो है एवरेज डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय मॉलिक्यूल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन. मीन फ्री पाथ ये जो गैस की डेंसिटी है उसके साथ इनवर्सली रिलेट करता है. तो हम डेंसिटी इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय कैपिटल V. N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है एनक्लोज गैस के, और V है वॉल्यूम ऑफ द गैस. हायर डेंसिटी पे ज्यादा कोलिजन्स होंगे और स्मॉलर होगा उसका मीन फ्री पाथ लैम्डा. लैम्डा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमने पहले ही देखा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी के साथ है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, से डायमीटर d. तो अगर स्मॉल साइज है मॉलिक्यूल्स का तो उसके लेस चांस ऑफ कोलिजन है और उसका लार्जर है, तो इट मीन्स दैट लार्जर इज द मीन फ्री पाथ. Further, this lambda is inversely proportional to the d square because it depends on the cross section of molecule. इसलिए हम लैम्डा का यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इंटू एन डिवाइडेड बाय वी. तो ये है एक्सप्रेशन फॉर द mean free path. 1 divided by square root 2 pi d square n by v. यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है आपको. Obtain the mean free path of nitrogen molecule at 0 degree centigrade and 1.0 atmospheric pressure. The molecular diameter of nitrogen is 324 picometer. Assume that the gas is ideal. यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं. कैपिटल T टेम्परेचर इज गिवन एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू 273 केल्विन. प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेयर विच इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल. डायमीटर दी है 324 पिकोमीटर विच इज 324 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर. अब आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT, ये रिलेशन हमें पता है. उसके बाद में R का रिलेशन है R इज इक्वल टू NaKB, वेयर KB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड Na इज द एवोगाड्रोस नंबर. एवोगाड्रोस नंबर स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय Na. ये एक रिलेशन है. तो ये तीनों भी रिलेशन का यूज करके हमने फाइनल इक्वेशन बनाया है. PV इज इक्वल टू NKBT. N बाय V लेते हैं तो P डिवाइडेड बाय KB हो जाएगा. फिर लैम्डा के लिए यहाँ पे N बाय V की लैम्डा का जो एक्सप्रेशन है उसमें हमें N बाय V की वैल्यू चाहिए, इसलिए ये इक्वेशन से हम N बाय V एज P KBT, यहाँ पे P लिखेंगे, KBT ऊपर चला जाएगा. अब बाकी के सभी पैरामीटर्स दिए हैं वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे 0.8 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर. यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 247 टाइम्स मॉलिक्यूलर डायमीटर से है. ये यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है. I hope you have understood the concept of mean free path. So we shall stop here. Thank you very much for watching.